हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो मतलब उसमें थोड़े से मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट एक बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट्स है। बट नेवरदलेस प्राइस एक्शन इज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गिव इट अ ब्रेकआउट। 4 महीने हो गए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और स्टॉक है हेल्थ केयर सेगमेंट का। 16,000 करोड़ की कंपनी है, आरओसी आरओई ठीक है, और अभी 4 महीने से जो कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ से लगता है कि एक ब्रेकआउट आ जाएगा। जो मेरा कंसर्न है सबसे ज़्यादा इस स्टॉक को लेकर, तो मैं आपको पहले बोल रही हूँ, सो डोंट स्टार्ट राइटिंग यू आर अ सेबी रजिस्टर्ड analyst why you are suggesting. I'm not suggesting anything to you. You have to make a choice. I'm only studying the price and I'm telling you both pros and cons, whether you want to make a choice or not. That's up to you, right? I'm nowhere responsible. My job is to only study. I'm not influencing you to buy or sell or add or exit, right? I'm just giving you my study understanding, and if you're okay with it, you can go ahead. Otherwise, just ignore this video. Simple. बट अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आप सीख भी सकते हैं। तो बात करेंगे जो कौन सी कंपनी है और उसके क्या फंडामेंटल्स हैं। और इस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि FIIs आर हेविली इन्वेस्टेड। ऑलमोस्ट लाइक 38% होल्डिंग इज विद FIIs, बट प्रोमोटर्स की होल्डिंग है कुछ 41.8% की। उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज भी की अपनी होल्डिंग, बट काफ़ी ऑलमोस्ट लाइक 98% ऑफ देयर होल्डिंग इज प्लेज्ड। एनीवे, बात करते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है। स्टॉक का नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। कंपनी है कुछ 17,000 करोड़ की, स्टॉक पी इज अबाउट 47, आरओसी इज 9.21, आरओई इज अबाउट 10। अगर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो एस्टर डीएम लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स ऑपरेटिंग इन द Gulf Cooperation Council countries and an emerging player in India with an inherent emphasis on clinical excellence. It is one of the few entities in the world with a strong presence across primary, secondary and tertiary quaternary healthcare. मतलब हर लेवल पे इनके हेल्थ केयर के क्लिनिक्स हैं। The company is emerging player in India through its network of 27 hospitals, 120 clinics, 371 pharmacies, and 14 laboratories, 100 patient experience centers, and as on March 31st, 2020. अगर इनका रेवेन्यू के स्प्लिट की बात करते हैं तो हॉस्पिटल से करीब 56% का आता है, क्लिनिक से 23% का, फार्मेसी से 21% का आता है। और जोग्राफिकल स्प्लिट की अगर हम बात करें तो गल्फ से इनका रेवेन्यू है 77% एंड इंडिया से इनका रेवेन्यू है अबाउट 23%। सो इनका company records low return from its hospital operations in India because it has adopted a capital intensive model in the domestic market. So what I want to go on कि this company has the focus, is aggressively focusing on the growth and aims to expand to reach 38 labs and 400 experience center by the end of year 23. So the company is really targeting to expand itself in India. As far as I am concerned, I think if there are more hospitals, more occupancy, more utilization of their clinics, I am sure the profitability will go up and they will be able to generate more profits. But anyway, I somehow don't like this idea of generating profits from hospitals. I somehow feel that hospitals should be no profit, no loss. But anyway, there are many hospitals which are working like Apollo Hospitals and Medanta, and all of them work like corporates and where only focus is on profits. But anyway, this is how the reality is. बात करेंगे कि कंपनी के प्रोज क्या हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका कि लास्ट 10 साल से इनकी जो मीडियन ग्रोथ है इट्स अबाउट 16.4%, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मतलब ईयर ऑन ईयर वो 16% ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं। कुछ कॉन्स भी हैं, दैट स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.16 times its book value, though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividend,
company has low return on equity, company might be capitalizing the interest cost, and promoters have pledged their 98.9, almost like 99% of their holding has been pledged, which is definitely not a very good sign. Means promoters अपनी सारी जिनके जितने भी शेयर्स हैं उनको प्लेज कर रखा है, या तो उससे पैसा बोरो करके ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, या maybe their expenses are high and they are meeting the expenses through these borrowings. I am not sure about what could be the right cause. देन सेल्स की बात करते हैं तो 2020 में इनकी सेल थी, जून 2021 में 1761 करोड़ की सेल थी, और वो आते आते जून 2023 में ऑलमोस्ट इट लाइक डबल, 3 इयर्स में इनकी सेल्स डबल हो गई हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट ग्रोथ इन देम, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन ऑल्सो ग्रोइंग on a regular basis. Net profit is also growing, EPS very small EPS is there, and sales have almost grown like 7-8 times, right? Expenses have also grown, but the profits has been consistently growing. जो profit 2013 में थे 261 करोड़ के, वो मार्च 2023 तक आते आते 1626 करोड़ के हो गए, ऑलमोस्ट लाइक 7-8 टाइम्स ग्रोथ हुई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन कंसिस्टेंट, एंड उसके बाद आ जाते हैं ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो कांस्टेंट. डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट दे आर पेइंग 0 डिविडेंड एक्सेप्ट वंस लॉन्ग बैक. बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स हैव रिसेंटली गॉन अप, ये देखिए 5700 करोड़ की, एंड इनके रिजर्व्स भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं. बट ये जो एक लाइक बोरोइंग्स, जस्ट लेट मी सी व्हाट आर दे डूइंग विद द बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इनकी 1312 करोड़ की. लीज लाइबिलिटीज, सो ये जो हॉस्पिटल्स लेते होंगे, रेंट पे लेते होंगे, या जो लीज लाइबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, राइट? दैट इज़ अबाउट 3413 करोड़. ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर ओनली 975 करोड़. तो इनका जो मेजर पैसा जाता है वो बिल्डिंग को लीज करने में जाता है. उसके बाद बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर इसको हम एक्सपैंड करके देखते हैं तो प्रॉफिट्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और अगर आप नीचे देखते हैं तो ये कंपनी कैश रिच भी है. देयर इज एंड ऑफ ऑल एक्सपेंसेस देयर इज कैश लेफ्ट विद द कंपनी. डेटर डेज हैव गॉन डाउन फॉर श्योर. और अगर हम ROCE की बात करें तो थोड़ा सा नीचे गया ROCE. अब आप इनके प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, 37 से थोड़ा बढ़ के 41.88 हुआ है, और FIS की होल्डिंग जो ईयर 2013 में थी वो 10.5% थी, वो बढ़ के नाउ 38.8% हो गई है. DIS की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एट अबाउट 8.6, पब्लिक की होल्डिंग है 10.26, एंड अदर्स की होल्डिंग है 0.42. अब इस स्टॉक के हम ग्राफ भी देख लेते हैं. दिस इज हाउ द चार्ट लुक्स लाइक एज द DM. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये 4 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, राइट? फ्रॉम 4th June when a breakout had come, it went horizontal, then slowly went up, then again little price rejection from the higher level. So what can I expect if this goes above 355 as the DM? आपको इसमें 400, 450, 500, 550 एंड 600 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और टाइम पीरियड आपका रहेगा 6 महीने का. तो ये एस्टरडेम का प्राइस चार्ट है आपके सामने, और इसमें देखिए लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन. प्राइस जो है हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ना नीचे गिरने पा रहा है ना ऊपर जाने पा रहा है. नीचे इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि इसमें लगातार बाइंग आ रही है, और ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है कि देयर आर स्टिल सम सेलर्स सिटिंग एट 355. जैसे 355 से ये सेलर्स एग्जिट होंगे या एब्जॉर्ब होंगे, ये सप्लाई जोन ख़त्म होगा, यहाँ पे आपको एक शार्प रैली आती हुई दिखाई देगी जो कि इसको 600 रुपये तक लेके जा सकती है. टाइम लगेगा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट विल हैपन इन 2 months और 3 months. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो मैं टाइम नहीं बता सकती, बट मुझे पता है कि ये 600 तक ज़रूर जाएगा, ऐसा इसका प्राइस एक्शन बता रहा है. बट देर आर डेफिनेटली सम कंसर्न्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टिंग प्लान बनाना है, ठीक है? क्या प्लान बनाना होगा? अगर स्टॉक 300 तक गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और अगर सपोज यहाँ से ऊपर चला जाता है तो 355 पे आप पहली बाइंग करेंगे. फिर थोड़ा सा और ऊपर जाता है, अगर रिट्रेस ऊपर जाके नीचे आता है, रिट्रेस करता है, तब आप थोड़े और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं. और अगर ये फिर 400 क्रॉस कर जाता है या
400 450 क्रॉस कर जाता है, देन इट इज़ नॉट गोना स्टॉप बिफोर 600. सो प्लानिंग के साथ ट्रेड करिए और ट्रेड अपना प्लान बना के करिए, राइट. प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, दोनों को आपको साथ लेके चलना है. अगर आप बिना प्लान करे सिंपली आते हैं, आपके फादर ने आपको 10 लाख रुपए दिए, आप सुबह 10 लाख रुपए लेके आते हैं और रैंडमली किसी स्टॉक में लगा देते हैं, एंड ऑफ द डे आप उसमें से 2-3 लाख रुपए कम ही करके जाएंगे. साथ लेके तो आप उसको नहीं जा सकते. जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा, नो मैटर हाउ गुड कॉल्स यू गेट फ्रॉम एनीबडी, आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. प्रॉपर प्लान करो, डिवाइड योर कैपिटल एंड उसको एग्जीक्यूट करो, देन यू विल बी सक्सेसफुल. आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग यू दैट स्टॉक मार्केट ओनली रिस्पेक्ट disciplined people, right? If you are not disciplined, it will throw you out of the market. Keep this in mind and trade safe and keep growing along with StockPro, and do join me for live trading every day from 10 to 11. Take care. Bye bye.